I'm joined by former Union Minister Prakash Javadekar, who has not only handled Parliament but has served in various capacities within Bharatiya Janata Party and in the government. Thank you so much, sir, for joining me. A very warm welcome to you on my show, On Point, Javadekar ji. My first Yes. question to you is that how do you see this mimicry row? The chairman, Rajya Sabha, Jagdeep Dhankar, seems to be very upset. He says that his community got insulted, his position got insulted, and this is unparliamentary. See, this is not about one individual instance. What happened after the parliament attack? It was an attack in a way because they jumped in and they had carried canister, so they blew it. But this could have been anything else. So on the exact day of first parliament attack, on 13th December, they chose this. It's not a sanyog. It's not yoga, it's prayog. And what it is, it points to a very sinister design. And therefore, first, after the attack or after this jumping in of two beds and the organized, the whatever they organized it, it was an organized attempt. They burned their phones. So it's a clear conspiracy. So in this conspiracy, what opposition would have done it? I remember when Atalji was the prime minister and this attack happened, all leaders came to his chamber and said that we are express their solidarity with the government. Here, this is not the case. The blame game started immediately. And they started blame game with statement. The other statement was given by Lok Sabha Speaker because it is his security regime. And he said it that the inquiry is immediately on. Police also and others also help will be taken. But this is how things are moving. So let conclude the evidence, conclude the investigation. We will get to know what has happened, who was behind it. But they started immediately blame game. होम मिनिस्टर सदन में आओ, होम मिनिस्टर सदन में आओ. अच्छा, होम मिनिस्टर सदन में आते तो क्या सुन लेते? फिर कहते प्रधानमंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ. प्रधानमंत्री आने पर सुन थोड़े ही लेते. ये डेस्परेट लॉट है. ये 24 के चुनाव का एहसास जिनको हो गया है, ये डर नहीं है, अब तो एहसास है. और एहसास के कारण ये इस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं. अब ये बाहर बैठे, पहले तो नॉइज किया, शोरगुल करते रहे ऐसे गंभीर विषय पर भी, और फिर बाहर जब एक्सपेल्ड हुए तो बैठे, धरना किया, यहां तक समझता है. लेकिन धरने में मिमिक्री करते हो आप. वो अपने पार्टी की जो प्रमुख है उसकी करेंगे क्या? कांग्रेस वाले राहुल गांधी शूटिंग कर रहे, अपने पार्टी की प्रकाश जी, आपने तो प्रमुख है ये मंत्रालय उनका चलाया करेंगे. भी है. प्रकाश जी, मंत्रालय चलाया भी है. क्या ये अनपार्लियामेंट्री है? संसद के यस, प्रांगण में क्या ये अनपार्लियामेंट्री है? ये इस तरह से मिमिक्री करना, अपमान करना, घोर अपमान करना. और ये बाहर देखो, पार्लियामेंट में जो बोला जाता है वो है, लेकिन पार्लियामेंट कैंपस में आप कैसे बिहेव करते हो, ये भी कंडक्ट का मामला है. और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये उन्होंने वीडियोग्राफी की खुद राहुल ने. अब वो कांग्रेस का सबसे प्रमुख नेता, अध्यक्ष है खड़गे जी, लेकिन कांग्रेस के नेता कौन? राहुल गांधी. तो राहुल गांधी खुद शूटिंग करेंगे और मजाक करने के लिए सब जगह भेजेंगे. तो ये अपमान नहीं तो क्या है? ये इनके मन में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए. और ये देखो, राष्ट्रपति का भी कैसा अपमान किया पहले से, वो आदिवासी समाज से आती है. प्रधानमंत्री का 20 साल इन्होंने अपमान किया, ओबीसी समाज से आते हैं.
अब जाट समाज के ये धनकर जी है तो इनका अपमान कर रहे, तो इनको खुद के बिना कुछ नहीं दिखता एक परिवार के प्रकाश जी, बाहर। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर और सदन के प्रांगण में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं वो एक है, मतलब पार्लियामेंट्री डिग्निटी एंड द ब्रीच ऑफ द कंडक्ट इज सेम इनसाइड द हाउस एंड विद इन द पेरीमीटर ऑफ द पार्लियामेंट्री कोर्टयार्ड, आप ये कह Yes, रहे हैं? there are rules. Yes, outside the parliament complex, that's a different rules. Here, you are supposed to behave in a particular manner. It's a serious business, Baba. It is not a. This is not a joke. This is not a funfair of the college. लेकिन आपके हिसाब से प्रकाश जी इतना इतना ज़्यादा मनमुटाव क्यों हो गया? आप भी कई साल संसद में रहे, आप भी कई साल पार्टी के बड़े पदों पे रहे, इतना मनमुटाव हो गया कि मतलब एक तरफ संसद नहीं चल रही है, दूसरी तरफ लगभग 90 से ज़्यादा एमपी सस्पेंडेड हैं, बाहर हैं। नहीं, मनमुटाव का कारण क्या है? जिस तरह से गाली गलौज, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। जब पूरी चर्चा हुई इस अधिवेशन में भी बिलों पर, तो क्या इन आर्थिक स्थिति पर बिल आया, उसका पूरी चर्चा हुई, आर्थिक स्थिति पर चर्चा इन्होंने मांगी, पूरी हुई, सभी बोले, 2 दिन बोले, निर्मला जी के एक उत्तर में खत्म हो गए। तो ये उनको मालूम है कि चर्चा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चर्चा करके उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। देश बदल गया है, देश सुधर रहा है, आम आदमी महसूस कर रहा है, इसलिए रट लगाते हैं। तो ये इसलिए ये आक्रोश है, पर ये पराजय का एहसास है, ठीक और है, ये इसलिए कोई इस तरह की। इसमें कोई दो राय नहीं प्रकाश जी की, बहुत बढ़िया जीती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जो विपक्ष का आरोप है, ये दो सवाल मैं चाहूंगा आप इन पे जरूर बोलें। विपक्ष का कहना है कि जब गृह मंत्री एक टीवी इंटरव्यू में बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का एक बयान बाहर आ सकता है, तो वही चीजें सदन में क्यों नहीं बोली जा सकती? अरे लेकिन सद मैं उल्टा पूछता हूं कि ये जिस समय ये ऐसा हादसा हो गया, जैसा अटैक एक तरह से हो गया पार्लियामेंट पर, तो एक बड़ी सुरक्षा की ये गलती सामने आ गई, तो तुरंत तुरंत ये संकट समझ के कि इसके पीछे कौन हो सकता है, ये समझकर तुरंत उनको प्रधानमंत्री को मिल सकते थे और कह सकते थे कि हम सरकार, या सदन में कह सकते थे कि हम सरकार के साथ है और सरकार इसकी जांच करके पूरा बताएगी बाद में। तो कौन मना करता? और यही सभापति ने कहा था, लेकिन ये कुछ मानने को तैयार नहीं। अब सभापति की सिक्योरिटी कंपाउंड में चलती है, तो वो उसकी व्यवस्था के प्रमुख है। ओके, आपको लगता है प्रकाश जी की धनखड़ जी चाहें तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है? नहीं, ये पहले तो डिसिप्लिन की एक्शन हो ही गई है ना, उनको एक्सपेल किया है, तो क्या है। लेकिन जो और मिमिक्री अभी वाला इशू है, जो मिमिक्री वाले भी एक ये किया ही है, एक्सपेल किया ही है। और पहले एक केवल राहुल जी ने जो किया, तो इसका क्या मतलब है? आप क्या स्तर की राजनीति करना चाहते हो? जिस तरह की भाषा बोलते हो प्रधानमंत्री के लिए, बाकी किसी के लिए, हम कभी नहीं करते, हम राहुल जी बोलते हैं, लेकिन वो कभी कुछ भी बोलते जाते हैं। अब इसके बीच में भी उनके जो फेवरेट आरोप है जो नहीं चले, वो भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सब खारिज किया, वो भी बोलते रहते हैं। तो रट लगाने से प्रचार नहीं होता, रट लगाने से सच्चाई साबित ऐसी नहीं होती। सच है वो रहेगा, जीतेगा, और ऐसी रट लगाकर बोला हुआ झूठ परास्त। लेकिन कई लोग तो ये भी कहते हैं प्रकाश जी कि इस पूरे के पूरे 48 घंटे के डेवलपमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन का तोड़ निकाल लिया। उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी धनखड़ साहब ने कि उसकी तो अपनी राजनीतिक जिंदगी होगी, सदन खत्म हो जाएगा ये सेशन, लेकिन वो पॉलिटिकली एक्टिव इशू तो रहेगा प्रकाश जी। नहीं, तो ये देखो, मैं ये नहीं समझता, इतने स्वार्थी बुद्धि से हम नहीं काम करते। हम, ये संविधान का अपमान है ना, संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति का कितना अपमान किया, प्रधानमंत्री का अपमान किया। अभी प्रधानमंत्री होते हुए भी जिस तरह से अपमानित भाषा करते, गाली गलौज करते हैं, तो यही तो इनकी फितरत है। तो यही कहना है भाई साहब,
बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक सवाल और ऐसे जाने नहीं दूंगा प्रकाश जी, आखिरी सवाल। लेकिन संसद फिर कैसे चलेगी? आपने भी इस प्रणाली में काम किया है। वो जेटली जी कहते थे ना कि ऑपोजिशन मस्ट हैव अ से एंड द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे। तो कैसे तो होगा वो ये? वे देना नहीं चाहते, नंबर वन। नंबर टू, वो वेल में आकर वे नहीं दे रहे, वो वेल में आकर खड़े रहते हैं, वो प्लेकार्ड्स लेकर खड़े रहते हैं। तो ये कोई वे देने का मार्ग नहीं है ना। गवर्नमेंट विल हैव वे? नो, देयर इज नो वे besides driving them out, only because tomorrow there is a debate on three. If they want to really do something, they can, but they don't have that. They don't want this to happen. They want to bring politics to this level. That is my final opinion. Thank you so much, Prakash ji, for joining Thank me you. on my show On Point. So, Prakash Javadekar, former union minister who served as the chief spokesperson of the Bharatiya Janata Party, says that it is a matter of parliamentary propriety